वो समझदार हैं, जागरूक हैं और सत्य और सही के लिए जूझ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वार्ता से चाहे न्यायपालिका से, अल्टीमेटली जो सत्य और सही है वो सरवाइव करेगा। इसलिए ना भड़कने की ज़रूरत है, ना भड़काने की ज़रूरत है, ना उत्तेजित होने की ज़रूरत है, ना उदासीन होने की ज़रूरत है। प्रतीक्षा करना और अपने प्रयत्नों को जारी रखना। मुझे पूरा विश्वास था, है और रहेगा कि जो सत्य और सही है अंततो गत्वा वह प्रतिष्ठित जरूर होगा। कहा गया है सत्य के रास्ते में बाधाएं और परेशानी आ सकती हैं, पर वो कभी पराजित नहीं होता। All right, let's go across to Amir now. Amir, that was Indresh Kumar saying the truth will eventually come out, so people don't have to be disheartened by the verdict. Don't get provoked and don't provoke other people. Maintain calm. Now, what is the Hindu side saying? Are they going to approach the higher court now? What is going to happen next, Amir? Well, definitely the Hindu side will approach a higher court as far as making appeals against the order of this particular district judge's court's order is concerned, because it definitely is a huge setback. We have been speaking consistently to the litigants from the Hindu side who were absolutely confident and sure that there will be an order in their favor, because even logically it does seem to favor them that if at all there's a contention being made by a by a certain party about a certain place or about a certain object, then a scientific survey or some kind of a methodology that can actually prove the claims being made by one side or disapprove the claims being made by the other side can actually be performed to arrive at a conclusion whether what the claims are being made, whether they are right or wrong. But then in this particular case, the kind of order that has been passed by the district judge's court has definitely left the entire Hindu side very, very dejected. They do feel that they ideally should have been granted this much of opportunity by the district judge's court, where their claim about this shivling-like structure being actually a shivling should actually have been scientifically tested. But the court clearly here it seems and had completely gone through all the options and had perhaps found out that it would not be of any help if even scientific survey or experimentation is allowed on the shivling-like object, because it is made of stone and the carbon dating process will not help determine its age. And also the fact that Supreme Court in its order passed on the 20th of May had made it absolutely clear that this entire complex, and especially the disputed area, the Wuzu Khana from wherein this shivling-like object was actually found out, should be sealed and should remain out of bounds for all such people, whether they belong to the Muslim community or otherwise. Well, we have the lawyer from the Hindu side, Mr. Madan Mohan. Madan ji, क्या फाइनली निकल कर आया आज की? क्या कहा जा रहा है? माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज हम लोगों को सुना और ये एक लंबी कवायद थी राडार पेनिट्रेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग का। उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि 16 मई को चूंकि वहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुए तो उनका कोई बेअदबी असम्मान न हो, इसलिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको यथावत रखते हुए, चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन है और यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर ने भी उसको सील कराया था वजू खाने में जो शिवलिंग प्रकट हैं, तो उसका किसी प्रकार छेड़छाड़ न हो उसको यथावत रखते हुए इस आदेश को कंटिन्यू किए। क्या आप लोग आगे जाएंगे हायर कोर्ट में इस फैसले के? जी, अभी काफ़ी मिले, उसका अध्ययन करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या ये बताइए, जिस तरह से लगातार बात चल रही थी कि जो वजू खाने की, so you see here the Hindu side clearly not happy with the manner in which today has turned out as far as the today's order is concerned. There's again some kind of a commotion, and we'll wait and get other side as well. If lawyers from the Muslim side emerge, as well as well, once again a lawyer from
हिंदू साइड हिंदू पक्ष का पूरा जो एक मामला था। देखिए, वादनी संख्या 205 की तरफ से जो ये याचिका दाखिल की गई थी वादनी संख्या 205 के द्वारा, ये इस कारण से खारिज की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जगह सील्ड है और ऐसे में Abhay, stay on with us. We have former Deputy Chief Minister Dinesh Sharma joining us on the broadcast. Dinesh Sharma जी, कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि कार्बन डेटिंग या ग्राउंड रेडार पेनिट्रेशन से जो शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ होगा, लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ भी होगा, इसीलिए हिंदू पक्ष का जो पिटिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? Okay, I think we've lost that line. We'll try and connect with him again. Meanwhile, let's listen into the reaction coming in. मुस्लिम पक्ष बार बार ये दावा भी कर रहा था कि मामला खारिज हो जाएगा, क्या उनको एक जीत के तौर पर भी देखा जाएगा? देखिए, जीत हार नहीं है किसी तरह से। ये वादनी संख्या 205 ने याचिका लगाई थी, याचिका क्लियर नहीं थी, आर्गुमेंट में तमाम चीजें थी, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए कि ऑलरेडी सील्ड है, ऐसे में करना उचित नहीं था, इसलिए कर दिया। के बाद क्या स्टेप है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कानूनन? देखिए, मेरा समझना ये है कि जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, जो आर्गुमेंट थी, बेहतर ये होगा कि इसी जगह पर एक अच्छी एप्लीकेशन लगाई जाए, अच्छी आर्गुमेंट की जाए, जो दलीलें उसमें क्लियर हो, जो मांग हो उसमें क्लियर हो, तो हम यहाँ से ऑर्डर को करा पाएंगे। ठीक है, क्या लगता है फिर से नई याचिका दायर की जाएगी इस पूरे मामले? देखिए, आने वाले समय में राखी सिंह की तरफ से क्लियर एप्लीकेशन में फाइल होगी। दिनेश शर्मा इज बैक विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो हिंदू पक्ष का पिटीशन था उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, ये कहा है कि नुकसान हो सकता है शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर को, इसीलिए ये हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, न्यायालय की अपनी क्रियाविधि होती है, उसमें किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन निचली अदालत से कोई निर्णय होता है तो उसपे एक ऑप्शन होता है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में जो विधिक कार्रवाई है वो संपादित हो रही है। तो इसलिए पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संदर्भ में भी तमाम प्रकार की निचली अदालत से और ऊपर अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से तमाम प्रकार की सुनवाई हुई है। उसके बाद जब कोर्ट संतुष्ट हुई है तो उसने निर्णय दिया है। ये एक बात अक्षरशः सत्य है कि काशी आज से नहीं, हजारों साल पुराना काशी की स्थापना है, भगवान भोले बाबा की स्थापना है। ये एक अक्षरशः सत्य वाक्य है जो सभी जाति और धर्म के लोग मानते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो माननीय न्यायालय के अधीन है। क्योंकि आपने उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया, आपने कहा कि हायर कोर्ट्स भी हैं, इसीलिए जो आज वर्डिक्ट दिया गया उसमें जज ये साफ कह रहे हैं कि अगर कोई नुकसान कार्बन डेटिंग से या ग्राउंड रेडार पेनिट्रेशन से होता है शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर को, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ होगा और लोगों की भावनाएं भी इससे आहत होंगी। नहीं, मैं न्यायालय का तरीका होता है, साक्ष्यों के आधार पर वो अपना निर्णय देते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि तमाम ऑप्शन रिट याचिका से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो धार्मिक भावनाएं हैं, क्योंकि काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, इनमें खासतौर से जो बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाएं हैं वो बहुत अंदर तक जुड़ी हुई हैं और हजारों हजार साल का एक पौराणिक इतिहास भी इनका रहा है। इसलिए इन पे हर सुनवाई पर, हर चीज के साक्ष्य प्रस्तुतिकरण पे लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं और लोग उनमें उत्सुकता से उसको सुनते हैं। मैं फिर से यही कहूंगा कि न्यायालय की कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगी और जो न्यायालय निर्णय देगा सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं आगे। कई लोग सेटबैक कह रहे थे इसको, आप इसको क्या सेटबैक की तरह देखते हैं हिंदू पक्ष के लिए?